हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ 6 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਾਈਨਰਸ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਚਲਿਏ ਜੀ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਮਾਈਨਰਸ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ A11 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? A22, A23, A31, A33। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ -A12 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? A21, A23, A31, A33। ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ +A13 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? A21, A22, A31, A33। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? भाई ये जो है कुछ भी नहीं है, माइनर है। जो एलिमेंट दा माइनर कढ़ना है, जो भी एलिमेंट दा माइनर, मान लो कि मैंने A11 दा माइनर कढ़ना है, तो मेरे को M11 कितना होएगा? एदी कॉलम दे रो छाड़ दो, जेडे चार एलिमेंट बचे, यानी कि A22, A23, A32, A11 दा माइनर, A32, A33। ठीक है जी, ये थोड़ा माइनर है। इस तरह हर एलिमेंट का माइनर निकलता है। उमें ही M12 कितना बनेगा? M12 ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ, क्या बचा जी? A21, A23, A31, A33। ठीक है, ये थोड़ा M12 ਦਾ माइनर हो गया। M12 माइनर यानी कि A12 एलिमेंट का माइनर, तो उस माइनर को रिप्रेजेंट करता M12। उमें ही सपोज मान लो तुसी माइनर कढ़ना है A32 दा, जो 32 दा कटोगे यानी कि आह वाला एलिमेंट, तीजी रो दूजा कॉलम, ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ? ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ A11, A13, A21, A23। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ 32 ਦਾ। ठीक है जी, 32 एलिमेंट केड़ा है? जेड़ा तीजी रो दूजे कॉलम दे विच है, ओदा माइनर, तो ओनु रिप्रेजेंट कितना करदा सी? M नाल। यानी कि अगर AIJ का माइनर कढना है तो किदे बराबर हुंदा है? MIJ। क्लियर है जी? माइनर इनु क्या कहते हैं? माइनर। हले सिर्फ ना माइनर भी कीती है, फिर कोफैक्टर भी करांगे। क्लियर है? हुन ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ MIJ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ obtained by deleting ith row ਤੇ jth ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2/2 ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ शब्द दिमाग सेट है। फिर एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने माइनर कढ़ना है 2 एलिमेंट का, तो कॉलम छाड़ दो, इस एलिमेंट का माइनर कढ़ना है, ਇਹਦਾ कॉलम डिलीट कर दो, ਇਹਦੀ रो डिलीट कर दो, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ एलिमेंट बचे A11, A13, A31, A33। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ? 2 ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਕੋਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ या फिर कैपिटल C ना कर दो। ठीक है जी, कोफैक्टर या तो कैपिटल A नाल या कैपिटल C नाल। तो कोफैक्टर हुंदा किदे
बराबर है -1 दी पावर i प्लस j ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਫੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ दिमाग से फिट कर लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस याद आया अरे कुछ भी नहीं तुसी एक की करते सी तुसी अपने माइनर दे नाल एक साइन मल्टीप्लाई करते सी याद आया अपने एंड तो लगाते सी ना प्लस माइनस प्लस कुछ भी नहीं तुसी कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते सी ओ किवें करते सी आओ देखो देखो थोड़े को एक डिटरमिनेंट दिखता कैसा है तुसी कहते हो a 1 1 है a 2 1 2 है a 1 3 है a 2 1 है a 2 2 है a 2 3 है a 3 1 है a 3 2 है a 3 3 है ठीक है हुन जो मैं माइनर कोफैक्टर का साइन देखना है इसका मतलब हो गया -1 दी पावर 1 प्लस 1 तो प्लस हो गया ना फिर -1 दी पावर 1 प्लस 2 -1 दी पावर 1 प्लस 3 -1 दी पावर 2 प्लस 1 -1 दी पावर 2 प्लस 2 राइट फिर -1 दी पावर 2 प्लस 3 तो तुसी सारे इन्ने होशियार इन्ने समझदार हो तुहानू सब नू दिख रहा है हुन कि किवें ये साइन सारे बने हुए ने ठीक है तो सानू ये पता चलिया कि -1 दी पावर 1 प्लस 1 -1 दी पावर 2 यानी कि इवन नंबर जो माइनस दी पावर इवन होंगे तो प्लस आंदा था प्लस का साइन आया फिर -1 दी पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3 ऑड तो जो -1 दी ऑड पावर आंदा तो नेगेटिव आंदा सी तो इस तरह सारे साइन जनरलाइज हो गए क्लियर है हुन अगर मैंने सपोज करो हुनी पीछे एक माइनर कटिया सी m2 थोड़े शब्द याद होएगा तो ओदे भी मेरे को आ गया सी a1 1 a1 3 a3 1 a3 3 हुन अगर मैंने ना कोफैक्टर कढना है अगर मैंने ना कोफैक्टर कढना है तो मेरे को c2 2 किदे बराबर आ जाएगा बच्चा पार्टी -1 दी पावर 2 प्लस 2 इनटू m2 2 ठीक है जी यानी कि -1 दी पावर इवन नंबर प्लस हो गया तो c2 जो है वो अल्टीमेटली m2 दे बराबर है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਮਾਈਨਰਸ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਮਾਈਨਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ क्योंकि अल्टीमेटली जो मैथ है ना वो बिना प्रश्न तो हल ही नहीं हो सकता थ्योरी जितनी मर्जी पढ़ा दिए हुनी हम थ्योरी पढ़ी बट स्टिल डाउट्स क्रिएट होंगे जिन्हें तक ओदे बेस पे कुछ क्वेश्चन ना कर लिए हुन इस दे विच मैंने की करना है मैंने एक डिटरमिनेंट दिता होया बहुत क्लियरली मैंने दिख रहा दो माइनर करने या तो माइनर तुसी कढना है m2 1 या m3 2 तो सब तो पहला तुसी सीखना की है सब तो पहला तुसी लोकेट करना सीखना है m2 1 यानी कि दूजी रो पहला कॉलम एक तो एदे बारे गल करनी है फिर m3 2 तीजी रो दूजा कॉलम ठीक है जी तो जिदो सब तो पहला m2 1 दी गल होई डिटरमिनेंट दा साइन पाया कोई काली नहीं करनी बहुत आराम नाल चलना है एदी कॉलम रो छाड़ दो एदा कॉलम छाड़ दो जेडे चार एलिमेंट बचे 0 3 1 9 तो 0 -3 थोड़े कोल कितना आ गया -3 ओके और मैं 3 2 यानी कि इस एलिमेंट की गल कर रहे हो एदा कॉलम छड्या एदी रो छड्डी थोड़े कोल बचा 1 3 2 1 तो थोड़े कोल कितना बच गया जी 1 -6 यानी कि -5 क्लियर है दोबारा देखो थोड़ी डिटरमिनेंट दिता हुआ है 3/3 का जो 3/3 का डिटरमिनेंट दिता मैंने माइनर करना है एक तो मैंने माइनर करना है 2 1 1 3 जो 2 1 कटना है तब सिंपली 2 1 लिखूंगी दूसरी रो पहला कॉलम छड़ता चार एलिमेंट बचे 0 3 1 9 हल करता 2/2 का डिटरमिनेंट हल करना था ओमे ही 3 2 लिख तीजी रो दूसरा कॉलम छड़ता जेडे चार एलिमेंट बचे लिख के मैं हल करता क्लियर है चलो फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ -3 5 1
-1 ਤੇ 7 ਇਹ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨੀ कि ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है -1 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है 7 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है चलो ਜਦੋਂ माइनर ऑफ इतना लिखोगे माइनर ऑफ -3 कटना है तो मैं की करूंगी कॉलम छाड़ता रो छाड़ती 4 5 -1 7 ओमे ही माइनर ऑफ अगर मैंने 5 का कटना है तो मैं की करूंगी बच्चा पार्टी 5 की कॉलम छाड़ता रो छाड़ती तो 2 -3 -1 ते 6 फिर माइनर ऑफ -1 कटना है तो थोड़े कोई कितना बचूगा -1 का कॉलम लो -3 1 0 5 ओमे ही अगर मैंने माइनर ऑफ किधर करना है 7 का तो मेरे को कितना बचूगा जी 7 का कॉलम लो छाटी तो 2 -3 4 ते 0 पहला माइनर की गल करते हैं कोफैक्टर नाल ना निकल जाएंगे तेरा माइनर कितना आ गया 7 चुका 28 प्लस 5 यानी कि थोड़े कोल बन गया 23 ओमी का माइनर कितना आ गया 12 -3 यानी कि 9 हाँ जी माइनर कितना आ गया -15 और इसका माइनर थोड़े कोल आ गया 0 + 12 यानी कि 12 उनमें कटना है कोफैक्टर आओ देखिए इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा जी क्योंकि केड़ी पोजीशन है 2 2 तो -1 की पावर 2 + 2 * 33 सो बच्चा पार्टी 33 ही आ जाएगा राइट फिर अगर इसका माइंड कोफैक्टर कटना है तो इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा 5 यानी कि 2 3 तो -1 की पावर 2 + 3 * 9 तो थोड़े को -9 आ गया इन द सेम वे अगर एदा कोफैक्टर कटना है तो एक किड़ी पोजीशन पे है जी -1 1 3 1 ते तो -1 की पावर 3 + 1 गुना -15 तो थोड़े को -15 ही रह जाएगा एंड द लास्ट वन अगर 7 देखना है तो 3 3 पोजीशन है तो कोफैक्टर आ गया -1 की पावर 3 + 3 गुना 12 तो थोड़े को 12 ही आ गया बोलो क्लियर है तो इस तरह क्वेश्चन जो भी पूछे किदा माइनर कटना किदा कोफैक्टर कटना तुसी सारे परफेक्ट हो तुसी कर सकते हो कि मेरा माइनर किवें कटने कोफैक्टर किवें कटने ग्रेट हुन ਤੁਹਾਨੂੰ क्या फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट और डिटरमिनेंट भी 2/2 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ देखो ਤੁਸੀਂ सब तो पहला m1 1 m1 2 m2 1 m2 2 सब तो पहले तो ये लिखने का तरीका है क्योंकि सानू उलझन नहीं होनी चाहिए हुन 1 1 3 का माइनर -5 1 2 2 का माइनर 6 देन 2 1 यानी कि 2 2 2 का -5 का 3 हुन मैंने कटने कोफैक्टर तो C11 पॉजिटिव हो गया तो -5 हो गया C12 ऑड बनेगा तो -6 आ जाएगा C21 -2 आ जाएगा C22 3 आ जाएगा बोलो परफेक्ट बिल्कुल क्लियर बिल्कुल सिंपल कुछ है ही नहीं करना की है बस माइनर कटे साइन जोड़ के अपने माइंड भी सोच लो कि की हुंदा है ऑड बन रहा है इवन अगर ऑड बन रहा है साइन उल्टा हो जाएगा अगर इवन बन रहा है साइन सेम रहेगा हाँ जी देखो लेट C31 8 के बराबर है C32 -14 के बराबर है x से y की वैल्यू बढ़नी है कोफैक्टर दिता हुआ है C31 यानी कि 8 के बराबर है तो -1 की पावर 3 + 1 31 इसकी गल कर रहे 31 ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਵੀ रो ਛੱਡ ਦੋ चार एलिमेंट बचे 5 3 4 ਤੇ y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर है 8 ओमे ही ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है C32 जो कि -14 के बराबर है तो -1 की पावर 3 + 2 3 2 ठीक है ए देखो ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੋ ਦੀ रो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ x 3 - 2 ਤੇ y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर है जी -14
बच्चा पार्टी 5y माइनस 12 जो है 8 के बराबर हो गया। 5y जो है 12 प्लस 8 यानी कि 20 के बराबर हो गया। तो y की वैल्यू इथों 4 आ। क्लियर है? दूजे पासे माइनस आएगा, माइनस उधर जाके पॉजिटिव था। xy प्लस 6 बराबर है 14 दे। y की वैल्यू 4 है तो 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 14 सॉरी जो 14 की वैल्यू आ गई तो 4x जो है वो 8 के बराबर आ गया तो x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है? तो थोड़ा आंसर इस क्वेश्चन में x से y पूछा सी, x 2 है y 4 है। बहुत सिंपल तरीके ना करना की है, सोचना की है। तुसी सिर्फ ये देखना है कि मेरे को दिता की होया 3 1 ते 3 2 बस उन्होंने वैल्यू पुट करनी है, उन्होंने कोफैक्टर्स का फार्मूला लगा देना है तो साडे को x ਤੇ y आंसर विच आ चुके। हुणे याद होएगा ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ अगर मैंने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन कोफैक्टर्स ना करनी हो तो मैं किमें करूंगी? याद करो, मेरे को एक डिटर्मिनेंट है, मान लो मेरे को एक डिटर्मिनेंट है, देखो इसी तरह का डिटर्मिनेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ और ਤੁਸੀਂ देखो ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਰ है m11 और ਇਹਦੇ के प्लस ਦਾ ਸਾਈਨ है तो लॉजिकली ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ क्या है, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ c11 है। अगर इन्हू प्लस करके इथे माइनस ला दा तो साइन दे समेत मेरे को C212 हो गया। हुणे प्लस ए साइन दे समेत मेरे को C13 हो गया। तो अल्टीमेटली तुसी देखिया कि अगर A11 नु C11 ना प्लस A12 नु C12 नाल प्लस A13 नु C13 ना मल्टीप्लाई करदा ते मैनू दिंदा की है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो तुसी इथों की समझा, किसी भी एलिमेंट्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜੋੜ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ डिटरमिनेंट। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੋਫੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ डिटरमिनेंट ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ थोड़ी डिटरमिनेंट दिता हुआ है, देखो प्रॉपर्टी भी लाती द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर कॉलम किसी भी चीज की विद देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर इज अ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हुन देखो तुसी A21 नु A21 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ C21 ਨਾਲ A22 ਨੂੰ C22 ਨਾਲ A23 ਨੂੰ C23 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੈल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आया। फिर तुसी सोचे कि एक्सपैंड करके देख लो ਤਾਂ भी सेम आएगा, चाहे तुसी किसी भी रो ए ਅਸੀਂ R2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ R1 ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। वैसे भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ डिटरमिनेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ रो या किसी भी कॉलम में एक्सपैंड कर लो आंसर सेम रहेगा। तो इन द सेम वे कि अगर चाहे तो तुसी कोफैक्टर वाली प्रॉपर्टी लगा दो डिटरमिनेंट का आंसर सेम रहेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर मैं किसी एलिमेंट्स ਨੂੰ किसी रो दे एलिमेंट या किसी कॉलम के एलिमेंट ਨੂੰ किसी होर रो, अगर मैं रो की गल कर रही हूं तो रो, अगर मैं कॉलम की गल कर रही हूं तो कॉलम, अगर मैं रो नु किसी होर रो दे कोफैक्टर्स ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 0 आएगा और मेनू डिटरमिनेंट नहीं देगा। किवें देखो अगर थोड़े कोल A11 A12 A21 13 ये थोड़े कोल पहली रो दे एलिमेंट्स है राइट बच्चा पार्टी क्या है पहली रो, इनु कोफैक्टर दूजी रो ना C21 C22 C23 इनु तुसी पहली रो दे एलिमेंट नु दूजी रो दे कोफैक्टर्स ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करता तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी बनेगी 0। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं दिंदी मींस अगर किते भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन बहुत एमसीक्यूज थोड़े पेपरां च बहुत जनरली पूछा जाता है और ਅਸੀਂ कई बार गलती ਨਾਲ टिक ला देने कि डिटरमिनेंट दिंदा भाई नहीं क्या देगा 0 किदे बराबर होएगा 0 दे। क्लियर है जी? तो ये आज का साडा टॉपिक सी माइनर्स एंड कोफैक्टर। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ पूरी ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ कि किमें ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ डिटरमिनेंट ਦੇ माइनस कर सकते ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ किमें ही कोफैक्टर्स कर सकते।
फिर मिलांगे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट। तब तक लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, बट जानते जानते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।